product life cycle. So who is going to tell me that what is PLC? Who is going to give the definition of that? What is the meaning of product life cycle? Product life cycle kya hai? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What is product life cycle? Who is going to tell me about it? Vaishnavi, Ankit, Shanaya, Divyanshu. Who is going to give me the answer of this? What is product life cycle? Who is going to tell me? Raise your hand. Vaishnavi? Yes, ma'am. It is the stage of the product from introduction to the last stage, that is decline. Basically, the product life cycle. What is the meaning of that? Product life cycle जो है, it is a life of a product, that how it is introduced in the market, how it is going to be grow, and then maturity, and finally decline. It is a life of the product in the market, in short, right? So here, oh, this should be here, I guess. This should be here. I'm just clearing the screen. Okay. So we all understand that this is product life cycle. Some here introduction, and this is the growth, and this one is the maturity stage, and this one is the decline, right? So what is the situation? What is the situation of the product in the growth, in the introduction stage? Who is going to tell me about it? What is the situation of the product in the first stage, and that is the introduction stage? Who is going to tell me what are the condition of the product at that time? What is the condition of the company at that time? Who is going to tell me about it? क्या condition होता है किसी भी product का जब वो introduction stage में होता है तो? What will be the situation? See, before introduction, there is one more stage which is not going to be considered under the product life cycle, and that is the product development stage, incubation stage, ideation stage, or innovation stage. All these names are same. In this stage, we are basically going to develop the product. We are going to do the market research. Whatever is done before launching the product, that comes under the product development stage or the incubation stage, right? The ideation stage. ये जितनी भी चीजें प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो मार्केट रिसर्च हो, टारगेट मार्केट हो, कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च हो, आपका ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हो, जितनी भी चीजें आएंगी, दैट विल कम्स अंडर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज और द आइडिएशन स्टेज. Once the product is launched in the market, once the product is introduced in the market, that comes under the introduction stage. And in the situation of the introduction stage, जो प्रोडक्ट होगा आपका, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा आपके पास लो होगा, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे, अवेयरनेस नहीं होगा, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है. सेल भी बहुत कम होगा, आपका प्रॉफिट जो होगा दैट विल आल्सो वेरी लेस इन दिस सिचुएशन, एज वेल एज वी कैन से दैट द प्रोडक्ट पर कॉस्ट जो रेट होगा दैट इज हाई, क्योंकि भाई लोग कम खरीदने वाले हैं, तो आपका प्रोडक्ट का पर पर्सन जो कॉस्ट होगा दैट विल बी हाई. उसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो रीच कर नहीं लेगा आपका कौन, कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो रीच नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी इनका जो होगा दैट विल बी पर पर्सन कॉस्ट हाई होगा, इनका रेवेन्यू बहुत लेस होगा, और साथ साथ में कंज्यूमर की अवेयरनेस कम होने की वजह से यहाँ पर एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट किया जाएगा. So all these situation is there in the this stage, the first stage, and that is the introduction stage. इंट्रोडक्शन स्टेज में लोगों को क्या सिचुएशन होगा मार्केट का इस प्रोडक्ट को लेकर के, आई टोल्ड यू. नाउ द नेक्स्ट वी जस्ट नीड टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, एंड दैट इज द ग्रोथ स्टेज. Here I can say that in the introduction stage there is some innovators, or there are some people who is very much curious toward adopting the new product. मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट आने के टाइम पे they are very curious, they always want to adopt the new product. ठीक है. So these people are known as the innovators who is going to try the new product at the first. ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में ही जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो तुरंत से ही वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे फॉर द ट्रायल बेसिस.
once those people are very much satisfied with the product, they are going to do the regular purchase, यानी बार बार वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे. So in the growth stage, those people who are the innovators, basically they are going to give you more and more customers by the mouth publicity, because once they are very much satisfied with the product, they are going to recommend the other people to purchase that product. So in short, we can say in the growth stage, the brand awareness will be increased. Why? Not because the aggressive advertisement is done in the introduction stage. मतलब introduction stage में इतना ज्यादा advertisement हुआ कि लोगों को information मिला आपके product के बारे में, तो आपके consumers increase हो जाएंगे. कुछ consumers तो आपके advertisements से आएंगे, कुछ consumers recommendations से आएंगे. उसके अलावा आपका revenue increase हो जाएगा, sale increase हो जाएगा. यहाँ पर आप चाहें तो प्रोडक्ट का कॉस्ट आप जितना इंट्रोडक्शन में आपने रखा है उतना ही रखेंगे, और आप यहाँ पर मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट का सेल मार्केट में हाई है. So this is the situation in the growth stage. When we are talking about the third stage, that is the maturity stage, here the आपका जितना भी ज्यादा ग्रोथ होना था हो चुका, पोटेंशियल लेवल पे आपका ग्रोथ हो चुका, आप बिल्कुल हाई पीक सेल पर होंगे. यहाँ पर आपका प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम और हाई होगा आपका, ठीक है. उसके अलावा आपका जो मार्केट शेयर होगा वो भी बहुत हाई होगा, क्योंकि और उसके बाद ग्रोथ भी हाई होगा. मतलब ग्रोथ क्या मतलब, यहाँ पर आप स्टेबल मार्केट सिचुएशन में है, आपने बहुत ज्यादा मार्केट एक्वायर कर लिया है. प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी अगर आप चाहें तो लो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो सिचुएशन होगा वो स्टेबल सिचुएशन होगा यहाँ पर, ठीक है. मतलब प्रोडक्ट के अच्छे खासे कस्टमर्स बन चुके होंगे. अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट में इनोवेशन भी कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अब आपके कस्टमर्स अच्छे खासे हैं, आपके कस्टमर लॉयल बन चुके हैं, तो आपके कस्टमर आपकी कंपनी के साथ ही रहेंगे. तो हियर यू कैन डू सम इनोवेटिव वर्क, सम changes or creative, or either you can do one more thing, that you can introduce the new related product with the older one. कुछ नया प्रोडक्ट आप older one से ले आ सकते हो. मतलब आप जैसे अगर कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं तो उसमें आप जैसे फ्लेवर्स नए नए आ सकते हैं ना, तो here you can change or create something new even. But in this stage only, what will happen, the new competitors with the new product, they can enter in the market, and they entered with a better product whatever you are offering. जो भी आप ऑफर कर रहे हैं आपसे बेहतर प्रोडक्ट के साथ वो मार्केट में एंटर करेंगे. So in this situation, in the maturity stage only, the new competitors entered in the market with the new product. ठीक है. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया, समझ में आया? स्टेबिलिटी वाले से ये आपके मैच्योरिटी वाले सिचुएशन में क्या हुआ, क्लियर हुआ सबको? Everyone? Yes. Okay. Yes, ma'am. Now the next one is like this is the decline stage. In the decline stage, what will be happen? अब आपके जो न्यू कॉम्पिटिटर्स हैं, अब उनके साथ compete करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आपने क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं किया. ठीक है. धीरे धीरे कस्टमर को जब बेटर ऑप्शन मिलेगा, दे विल शिफ्ट टुवर्ड द न्यू ब्रांड और न्यू कंपनी. ठीक है. न्यू प्रोडक्ट की तरफ वो शिफ्ट करना शुरू करेंगे. जैसे ही उनको लगेगा कि आपसे बेहतर जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटिटर्स कंपनी, very less loyal customers are going to be with you in your company, otherwise they are going to move toward the another brand. In the case of the decline stage, once your sales will be decreased, in that situation what will be done, this company is going to start doing cost cutting. That company is going to start कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देगी, अपने खर्चे को कम करना शुरू कर देगी, बिकॉज दिस कंपनी नाउ अंडरस्टैंड दैट नाउ आई एम गोइंग टू बी आउट फ्रॉम दिस, बोल सकते हैं मार्केट में, मार्केट से बाहर जाने वाला हूँ. तो कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देगी, एडवर्टीजमेंट कम कर देगी. कुछ लैगार्ड्स जो होते हैं, विच आई टोल्ड यू, द पीपल हु आर द लास्ट अडॉप्टर, यानी जो कोई भी प्रोडक्ट आया और उसके बाद सबसे लास्ट में जाकर के जब कोई कंज्यूमर्स उसको अडॉप्ट करते तो दे आर लैगार्ड्स. लैगार्ड्स जो होंगे दे विल कम इन द डिक्लाइन स्टेज, बट देयर रेशियो इज वेरी लेस इन द मार्केट. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दे आर लैगार्ड्स. तो ऐसे लोगों के लिए आप कंपनी फिर भी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकते डिक्लाइनिंग से. So that will be in the same situation. The price of the product you can do, either you can do the low price आप use कर सकते हो या फिर आप high भी रख सकते हो. The price scenario is totally dependent upon the type of the product what you are selling. So यहाँ पर decline stage के बाद आपका जो product होगा that will be out from the
market. So this is the whole life cycle of the product. Let me tell you that there is a one more step, there is a one more stage, like जैसे कि मैंने आपको बताया कि that there is a product development stage, but in the stages of product life cycle we are not considering it, है ना, उसको हम लोग नहीं लेते, हम लोग सिर्फ 4 स्टेज मानते हैं, that is introduction, growth, maturity and finally decline. So what will be the situation after the decline? There is a one more stage, एक और stage है, that is known as postmortem. I guess most of you already know about this postmortem word. Postmortem क्या होता है, सबको पता है? Yes, ma'am. After the death of the person, for the investigation purpose, like we are basically doing the postmortem of the body. So that is the postmortem, right? But here in the product life cycle, what is the meaning of postmortem? Like so many companies who are basically selling the electronics product. बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो electronics product को सेल कर रही है. कौन कौन सी वो कंपनी है? Like LG we can say, Samsung है, उसके अलावा आपके Whirlpool है ना. तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो भी प्रोडक्ट को लेकर आती हैं, नेक्स्ट ईयर तक उनका कोई नया मॉडल मार्केट में आ जाता है, हार्डली 1 साल. मोबाइल के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है. तो बहुत सारे ऐसी मॉडल्स हैं जो 1 साल 2 साल के बाद बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, मार्केट से चली जाती है. तो ऐसे सिचुएशन में द पर्सन हु ऑलरेडी परचेज दूस प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल last year I purchased washing machine and this year that washing machine is not available in the market. But the question is that if I want a repair of that, if I want to do repairing कराना है, खराब हो गया, कुछ भी हुआ, so for that we need the parts, spare parts we required for that, है ना, चाहिए होगा, जरूरत होगा. तो जब मॉडल बंद हो गया, तो मॉडल जब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं रिपेयर कैसे करवाऊंगी अपने वॉशिंग मशीन को? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो अकॉर्डिंग टू सम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, इफ द मॉडल इज बेसिकली बोल सकते हैं डिक्लाइंड इन द मार्केट, और इट विल बी बोल सकते हैं इसको हटा दिया गया है कंपनी के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में जिन्होंने भी कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट को परचेज कर रखा है, उनको रिपेयर के लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी. तो आइदर यू कैन स्टॉप मेकिंग द मॉडल, एनी मॉडल, आप किसी मॉडल को बंद कर सकते हैं बनाना, बट स्टिल यू हैव टू सेल द स्पेयर पार्ट्स ऑफ मॉडल. So that is known as the postmortem stage. But this is basically available for those बेसिकली उन प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अगर हमने कार परचेज किया, तो कार वगैरह जो होता है दैट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, दैट इज अ फिक्स्ड, मतलब बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट से मतलब ये 1 2 साल 3 साल के लिए हम लोगों ने कार नहीं परचेज किया होता है, कम से कम 20 साल 25 साल वी जस्ट रिक्वायर्ड टू यूज इट. जरूरत होता है ना, इतना महंगा खरीदेंगे, अगले साल तो बदल नहीं सकते हैं उसको. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी तो स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलेगा, मॉडल बंद, स्पेयर पार्ट्स मिलना बंद, तो कहाँ जाके रिपेयर कराओगे? फिर वो जो आपने 10 लाख रुपए कार परचेज करने में लगाया, दैट विल बी बिकम वेस्ट फॉर यू, आपके लिए वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए ये बोला जाता है कि जो भी कंपनीज आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह सेल करती हैं, वो कभी भी अपने सारे मॉडल्स के स्पेयर पार्ट्स एक साथ बेचना बंद नहीं कर सकती हैं. यानी कि जिसको भी जो भी मॉडल उन्होंने रिड्यूस किया, हटाया, अपने प्रोडक्ट लाइन से उसको हटा दिया, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स को आपको मार्केट में अवेलेबल कराना है. तो दैट इज बेसिकली पोस्टमार्टम स्टेज. ठीक है, दैट इज नॉट रिटन इन योर बुक, बट आई जस्ट टोल्ड यू कि क्या होता है पोस्टमार्टम स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. आई गेस एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. This point is clear to all of you. What will be happen in the case of the postmortem? Okay. So I just want to discuss some of the points, some of the examples of the product life cycle. So how many of you know about the ambassador car? How many of you know about the ambassador car? कितने लोग ambassador car के बारे में पता है? How many of you? कितने लोग देखते हैं उसको मार्केट में, मतलब raise your hand. So we all know that nowadays the ambassador car is used for the ministers and the officials. देखा होगा आप लोगों ने कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स आज भी वो कार जो है अवेलेबल है. तो लेकिन स्टिल अगर मैं नॉर्मल टर्म में आपको ये बात बताऊं तो दिस मॉडल इज ऑलरेडी डिक्लाइंड इन द मार्केट. इट इज नॉट अबाउट द टुडे, बट दिस मॉडल इज वेरी ओल्ड. इट इज अराउंड 1950s और 60s के टाइम पे ये मॉडल आया. उसके बाद लगभग ये काफी साल तक इंडियन मार्केट में रहा भी, लगभग 90s तक ये अच्छा खासा इसका डिमांड था. और एम्बेसडर जो कार था दैट वाज अ वेरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार और स्पेशियस कार के लिए फेमस था.
ठीक है, काफी स्पेस है, स्ट्रॉन्ग कार है, उसके लिए वो फेमस था। और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास और ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एमएलए उस कार को ज्यादातर यूज करते थे और काफी सालों तक ये चीज चलता रहा। लेकिन आफ्टर दैट वी कैन सी दैट मारुति जो था दैट एंटर्ड इन द मार्केट एंड दे स्टार्टेड सेलिंग द अदर मॉडल्स ऑफ द कार, मतलब अलग अलग मॉडल्स को उन्होंने सेल करना शुरू किया। एंड उसके बाद बहुत सारी इनएडिक्वेसीज जो था, कॉम्पिटिटर क्या करता है, दूसरे कॉम्पिटिटर से बेटर जब प्रोडक्ट लेकर आता है तो अपने आप आपको दूसरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम और कमी दिखने लगेंगी, होता है कि नहीं, ये सही बात है। So the same situation happened. There were so many problems which is related with the ambassador car that was shown because of the competitors. ठीक है, and after that इसके बाद क्या हुआ, जो आपका कार जो था, बट दैट इज अ बेसिकली लॉयल कार फॉर द मिनिस्टर्स एंड फॉर द गवर्नमेंट। तो आज भी आपको ये कार कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स को यूज करते हुए आप देख सकते हैं, या तो वैसी फैमिली जिसने अभी तक इस कार को रखा है एंड दे आर यूजिंग दैट। बट लेकिन अगर मैं कार का डिमांड की बात करूं तो दैट इज टोटली डिक्लाइन इन द मार्केट। अब ये बिल्कुल ओल्ड फैशन और अनपॉपुलर कार में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द डालडा, अच्छा आप लोग में से कितने लोग हैं जो डालडा अभी भी यूज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? आपके घर में डालडा को आज भी यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है? हाउ मेनी ऑफ यू? अंकित, एंड व्हाट अबाउट द अदर्स? रुचि, see this is a normal question, you all can tell me about it, but I just want to tell you that how this is also basically less demanded in market, and nowadays even no one is purchasing dalda, very few people are purchasing that. Now the question is that why this happened, like if we'll talk about this in 15 years ago, आज अगर हम 15-18 साल की बात करती हूँ, मैं खुद बताती हूँ, in 2000 I came to Patna and उस समय भी डालडा जो था आराम से मार्केट में अवेलेबल था और हम लोग भी डालडा परचेज करते थे। ठीक है, तो यहाँ 15 साल पहले की बात करें तो हाँ ठीक है, अबाउट 15 years बैक अगर हम देखें तो उस समय आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा जो था वो सेल करते थे और उन्होंने एक कैंपेन भी किया था एंड दे यूजिंग द स्टेटमेंट दैट इज ममता की कसौटी पे खरा आपका डालडा, इस तरीके का एडवर्टीजमेंट आता था। तो ये घर घर में लोग डालडा यूज करते थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिफाइंड ऑयल। एट दैट टाइम बहुत रेयर कंपनीज जो थी वो रिफाइंड ऑयल बनाती थी, जैसे एग्जांपल के लिए धारा दे वर मेकिंग रिफाइंड ऑयल एट दैट टाइम ऑल्सो, बट द पॉपुलैरिटी जो थी ना आपके रिफाइंड ऑयल की दैट इज वेरी लेस बिकॉज डालडा काफी सालों से चल रहा था। So dalda जो था that was started declining once the people understand about the consequences of dalda. So many people started saying about that dalda is very much harmful for heart and the other organs, right? For the body it is very harmful. So the people started leaving it. ठीक है, धीरे धीरे डालडा को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया, बंद कर दिया उसको यूज करना, and the people started adopting the new substitute product and that is the refined ऑयल। लोगों ने तेल रिफाइंड ऑयल को यूज करना शुरू किया। डालडा का जो कॉस्ट था स्टिल सम पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, विद डालडा का कॉस्ट कंपैरिजन टू द बोल सकते हैं रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा कम होता है, हल्का फुल्का लेस होता है, नॉट वेरी मच लेस होता है। और डालडा में जो बोल सकते हैं टेस्ट जो आता है दैट इज नॉट विद द रिफाइंड ऑयल, सो स्टिल द सम पीपल आर यूजिंग इट, सो दैट इज द ट्रुथ। बट रिफाइंड ऑयल के कंपैरेटिवली डालडा का जो अभी डिमांड है दैट इज वेरी मच डिक्लाइंड, एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। अभी आप लोग ये भी देखना कुछ दिनों बाद रिफाइंड ऑयल का डिमांड भी दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ द राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड ऑयल मार्केट में आ चुका है एंड दैट इज बेसिकली गुड फॉर आवर हेल्थ। सो दिस इज समथिंग विच इज ऑलवेज अवेलेबल कि आपके मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ बेहतर मिलता है। And nowadays people are more health conscious as well, so they never want to use those products which is adversely affect them, right? So डालडा का भी यही सिचुएशन हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर कोशिश किया कि ये इनको रीलॉन्च करे, वापस से लॉन्च करे डालडा को, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया लॉन्च क्योंकि वो उनको एक बात पता चल गई थी कि जो मार्केट शेयर रिफाइंड ऑयल का है वो ऑलरेडी इतना हाई है कि नाउ द पीपल आर नॉट गोइंग टू मूव टुवर्ड द डालडा। और एक और चीज, फॉर द डेली पर्पस, बिकॉज रिफाइंड ऑयल इज ऑलवेज यूज ऑन द डेली पर्पस, मतलब हर दिन का काम आपके आता है ना। लेकिन जो डालडा है मोस्ट ऑफ द पीपल आर परचेजिंग इट ओकेजनली व्हेन देयर इज सम ओकेजन लाइक दिवाली फॉर मेकिंग स्वीट, दे आर परचेजिंग इट, बट फॉर द डेली पर्पस स्टिल द पीपल आर यूजिंग रिफाइंड। So this is something which because of that dalda was declined. ठीक है,
बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफाइंड ऑयल वी कैन से, रिफाइंड ऑयल का जब जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ने लगा वैसे ही डालडा का डिमांड रिड्यूस होने लगा। इफ विल टॉक अबाउट द पेजर, पेजर आप लोग में से बहुत लोग की तो बर्थ भी नहीं हुई होगी जब ये पेजर जब ये आया होगा। तो लेट मी टेल यू द पेजर्स जो था ये इट वाज अ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज यूटिलाइज फॉर द रिसीविंग अ स्मॉल मैसेजेस, छोटे छोटे मैसेजेस वगैरह को रिसीव करने के लिए पेजर्स था। तो पेजर जो था इट वाज आल्सो एंड द कॉर्पोरेट पेड ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत सारी कंपनीज ने बहुत ज्यादा पैसा पे किया था लाइसेंस लेने के लिए पेजर का, बिकॉज पेजर वाज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज अ क्रिएटिव और इन्वेंशन इज विद इन्वेंशन हुआ था पेजर का। तो बहुत सारी कॉर्पोरेट दे पेड अ हाई अमाउंट टू टेक दिस टेक्नोलॉजी। बट लेटर ऑन जब जैसे जैसे ही आपका मोबाइल फोन आना स्टार्ट हुआ इन 2002-2003, आपका मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल पर भी पैसा, इनकमिंग कॉल पे पैसा लगना बंद हो गया। आप लोगों को बता दूं मैं कि जब मोबाइल फोन 90s के टाइम पे था, 90s के टाइम पे 98-99 में जब मोबाइल फोन मिलता था, ऐसा नहीं था कि मिलता नहीं था, बट उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के चार्जेस लगते थे। लेकिन 2002-03 के अराउंड में आपकी इनकमिंग कॉल बंद हो गया, इनकमिंग कॉल पे आपका कॉस्ट लगना बंद हो गया। बहुत सारे लोगों ने दे स्टार्ट परचेजिंग द मोबाइल फोन, और जैसे ही मोबाइल फोन आया दे केम विद दैट मैसेज फैसिलिटी और मैसेज फीचर्स था उनमें। तो धीरे धीरे द पेजर्स का जो डिमांड था दैट वाज डिक्लाइन, राइट। नाउ उससे भी और पेजर से भी लो कॉस्ट में मोबाइल फोन अवेलेबल हो गया। सो हु इज गोइंग टू परचेज द पेजर्स नाउ? सो दैट्स व्हाई द पेजर्स वाज डिक्लाइन इन द फ्रॉम द मार्केट। इफ विल टॉक अबाउट द मोपेड्स, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द वर्ड लूना? अंकित, एंड हाउ मेनी ऑफ व्हाट अबाउट द अदर्स? तुम लोग में से किसी ने भी वो वर्ड नहीं सुना? लूना जो होता है एक बाइक है, दिस इज अ काइंड ऑफ बाइक और साइकिल का मिक्सचर आपको वो दिखेगा, ठीक है। ओह सो मेनी ऑफ यू। सो लेट मी टेल यू दैट द मोपेड्स आर, अच्छा आप लोग में से कितने लोगों ने वो, okay, so you all can able to see this moped, what I told you, this is a mixture of cycle and a bike, we can say this is a moped. I guess you all are able to see the cursor, सबको cursor दिख रहा है? Yes. Yes, ma'am. हाँ, Yes, so this ma'am. is basically Yes, a moped. Yes. So why this even declined from the market? So moped was once the second biggest segment in the two wheelers. मतलब एक टाइम था जो moped की सेल इतनी ज्यादा हाई थी, that was the second, मतलब टू व्हीलर्स में इसका डिमांड बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। इट इज अ हार्डी वर्कहॉर्स एबिलिटी टू शिप स्लोली ऑन द फ्यूल एंड सर्व द पर्पस ऑफ बेसिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स अफोर्डेबिलिटी। द कॉस्ट वाज नॉट एज सच हाई, सो द पीपल आर एबल टू अफोर्ड इट, एज वेल एज इट इज यूटिलाइज फॉर बेसिकली जो बच्चे ने बताया कि इधर से उधर सामान वगैरह ढोने के लिए दैट वाज यूज। एंड ये कंज्यूमर में, दोनों कंज्यूमर में फेमस था। इट्स नॉट अबाउट द अर्बन पीपल बट द रूरल पीपल ऑल्सो यूज दैट मोपेड, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बाइक्स आने लगे विद द ब्यूटीफुली डिजाइंड एज वेल एज विद द लो कॉस्ट एंड द बेटर, बोल सकते हैं कि इसका जो फैसिलिटी था, बेटर फैसिलिटीज के साथ जैसे आपके बाइक्स आने लगे, वैसे वैसे ही आपके बाइक्स और स्कूटी आने के बाद मोपेड्स का जो डिमांड था दैट वाज डिक्लाइंड, ठीक है। तो मोटरसाइकिल एडेड स्कूटर्स जब एंटर हो गए मार्केट में, तो मोपेड जो था दैट वाज बेसिकली इरोडेड एंड इट्स market declined, but they basically did a lot of things. Basically they campaigning chal meri luna, there are so many statements they use, but still that product's popularity was not as such because there is so many problems which is related with luna. It is not as such fastest like bike and all, so there are so many things which is not available in luna, or we can say moped. So that's why the market of mopeds was declined, and the new substitute product was available like the scooter and the motorcycle. Let me tell you, the scooter का भी जो अगर आप मॉडल देखिएगा तो अभी जो स्कूटी हम लोग देखते हैं टीवीएस का, या फिर हम देखते हैं जब आपके होंडा का स्कूटी जो हम लोग देखते हैं, the design of the earlier scooter और स्कूटी में there is a lot of difference. I guess you all understand that. कि स्कूटर जो पहले आता था, प्रिया, बजाज का स्कूटर आता था, याद होगा, प्रिया उसका नाम था मॉडल का, दैट वाज आल्सो डिक्लाइंड, एंड नाउ द न्यू अरेना इज ऑलरेडी अराइव्ड एंड वी आर एबल टू सी द स्कूटी, द फास्टेस्ट लाइक द बाइक, and scooty and the bikes are available nowadays in the
market. So there are so many things that already declined because of there are some reason. क्या reason है product के decline हो जाने का और क्या reason है दूसरे, मतलब क्यों ये product decline हो गया, तो उसका सबसे बड़ा reason होता है technological advancement. When the better product with the better technology arrived in the market and you are not able to change your product with the new technology or upgradation is not done, in that situation your product is not going to work for the long time. So this is the first situation, that the technological advancement or the introduction of the new technology. Second one is availability of the new substitute. Like the same thing has happened in the case of the dalda. When the refined oil was introduced in the market, the people start analyzing that refined oil is better than comparison to the dalda because of the health problems. Are so many health problems can be arise because of using dalda. So people started using the refined oil. So when there is availability of refined oil, the dalda market was declined. So there are 2-3 reasons that because of that only the product life cycle is become short of the product. अब अच्छा मैं इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इंडिया में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है कंपैरिजन टू द अदर कैपिटलिस्ट कंट्री, वी कैन सी यूएसए, दैट इज हाई. यानी यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक डिमांडेड होता है. अगर हम इसको कंपेयर करें कोई कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंट्री आपका यूएसए से, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपैरेटिवली हाई है. क्यों हाई है मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज भी रूरल एरियाज में द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी. ट्रू और नॉट? सही बात है कि नहीं? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में हु आर यूजिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी either because of the convenience or because of the affordability. Like the people are purchasing the mobile phone, the keypad mobile phone because of the convenience, because they are easy for them, it is easy to use. First thing, and second thing is the cost is very low of those mobile phones. But if we'll talk about the smartphones, at least we have to give 5,000 rupees to purchase that mobile phone. So in this situation, because there are so much diversification in the market, बहुत ज़्यादा diversification है. कुछ लोग अभी भी old technology use कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल latest technology use कर रहे हैं. Some people are in the middle. So this is because of this scenario in India, the product life cycle of the product, PLC of the product is high as comparison to so many other countries. So I guess this point is clear to all of you. These things are clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको Yes, समझ में आया जो मैंने Yes, ma'am. बताया? ठीक है, चलिए. Okay, so I am just going to elaborate once again. There are some marketing strategy which is given. I guess product development stage, which is innovation ideation stage, that is clear to all of you. Introduction stage is clear to all of you. Introduction stage में क्या क्या सिनेरियो होगा? There is one table which is given in the page number 81. Please check it in the PDF, not right now, after the class. So here there is a summary of the PLC characteristics, objectives and strategy is given. Okay, so in the last class we discussed most of these points, but the advertising and sales promotion, I guess I left these 2 points, I guess. So chaliye, let's start with this. So strategies की बात करें, marketing strategy, here we are taking the 4 P's: product, price, place, promotion. So the first one is product. In the case of the introduction stage, we are basically offering the basic product, very basic product. With that we are going to start sale in the market. बहुत basic product के साथ हम market में product को sale करना शुरू करेंगे. In the case of the growth stage, the product में कुछ extension कर सकते हैं, जैसे number of products या फिर types में थोड़ा बहुत increase किया जा सकता है. तो offer product extensions. In the case of the maturity stage, if we talk about the product, then the diversified brand, where we are basically adding services and warranty because we are become stable in the market. Our growth is at high and the price of the product is basically high in that situation, and we are in the stable situation. यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा market share है. So what we can do the service बढ़ा सकते हैं, warranty increase कर सकते हैं, ठीक है, services, warranty वगैरह देना, brand को थोड़ा diversify कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने मैगी में देखा होगा, they already did that, brand extension उन लोगों ने already कर दिया. जैसे मैगी से related बहुत सारे अलग अलग products भी वो market में ला चुके हैं. So why they are doing so? Because they are at maturity stage. Right now they are at maturity stage. They are not in the growth. They have so many consumers right now. ठीक है, तो यहाँ पर हम what we can do, we can diversify the brand. Now in the situation of the decline, अब decline situation में क्या होगा, decline stage में क्या होगा, तो यहाँ पर product में अगर हमने कुछ diversification किया होगा
यानी अगर हम एक की जगह 3-4 उसी टाइप के प्रोडक्ट्स को ला चुके होंगे मार्केट में, तो हम देखेंगे कि हमारा वीक मॉडल कौन सा है। अगर मुझे लगेगा कि भाई ये ABCD ये जो 4 में से जो B मॉडल है, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू सेल इट प्रॉपरली इन द मार्केट, द कंज्यूमर इज वेरी लो हु इज परचेजिंग B प्रोडक्ट, so what we can do, we can basically remove that product from the product line। हम उस B नाम के जो प्रोडक्ट है उसको बाहर कर देंगे अपने प्रोडक्ट लाइन से। तो here we are basically phase out the weak items model। जो भी weak items के मॉडल होंगे हम उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, because here we are we achieve the stage of cost cutting। यहाँ पर हमें पैसे को बचाना है, अपने एक्सपेंस को क्या करना है, कम करना है। तो जो मॉडल मार्केट में काम कर ही नहीं रहा है उसको सेल क्यों करना। So what we will do, we will remove the weak model। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला सिनेरियो। फर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने बताया, सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, Everyone? Okay, product is clear to all of you? प्रोडक्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रोडक्ट में इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्रोथ में क्या होगा, मैच्योरिटी में क्या होगा, डिक्लाइन में क्या होगा? क्लियर है सबको? पहला Yes, ma'am. बेसिक प्रोडक्ट के साथ इंट्रोडक्शन में शुरू करेंगे, ग्रोथ में थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मैच्योरिटी में सर्विसेज में भी बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ में ब्रांड एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, और लास्ट में जो भी मॉडल काम नहीं कर रहा है उसको हटा देंगे इन द डिक्लाइन स्टेज। व्हाट विल बी हैपन इन द प्राइस? प्राइस कैसे सेट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सी, जब हम लोग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मैं प्राइस के लिए वर्ड्स यूज कर रही हूँ मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। तो सबसे पहला यहाँ प्राइस में लिखा है कॉस्ट प्लस। तो कॉस्ट प्लस क्या होता है, मैं शेयर करी हूँ स्क्रीन, मैं बताती हूँ कॉस्ट प्लस क्या होता है। देखिए, कॉस्ट प्लस का मतलब होता है कि जैसे आपका रॉ मटेरियल, आपका कैपिटल, जो भी चीजें आपकी, कितना पैसा लगा आपको प्रोडक्ट को बनाने में। एग्जाम्पल में अगर आप एक पेंसिल बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपका इसका कॉस्ट, इसमें लेबर कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, जो भी नेचुरल कॉस्ट, जो भी चीजें हैं यहाँ पर आपका कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल को बनाने में मेरा 5 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, और जब मैंने इसमें अपना प्रॉफिट एड ऑन कर दिया, लाइक 2 रुपीज आई एडेड द प्रॉफिट, नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट बिकम्स 7, राइट। तो इस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 7 रुपीज। तो व्हेन वी आर बेसिकली यूजिंग द एडिशनल जब हम प्राइस यूज करते हैं कॉस्ट के ऊपर, तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस आपका कॉस्ट प्लस प्राइस। क्लियर हो गया, बात समझ में आया यहाँ पर? When Yes, we ma'am. are using the margin, जब हम कोई मार्जिन यूज करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस के साथ, कोई मार्जिन, अब कोई भी जो कंपनी है, they will never sell the product less than the cost, true or not? कॉस्ट से कम में क्या कोई प्रोडक्ट को सेल कर सकता है? No, ma'am. no ma'am. नहीं करेगा। अब यहाँ 5 रुपए बनाने में लगा है तो 4 रुपए में तो कभी भी सेल नहीं करेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा इसको? तब तो ये कंपनी कुछ दिन के बाद डिक्लाइन ही चली हो जाएगी। तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर जो भी हम मार्जिन लेते हैं, तो फाइनली जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है जैसे 7 रुपीज, तो इस मेथड को हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहाँ Yes, पर ma'am. जब हम इंट्रोडक्शन के स्टेज में जब हम प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को यूज करेंगे, यानी जो भी कॉस्ट हमारा बनाने में प्रोडक्ट को लगा वो कॉस्ट और उसके अलावा जो मार्जिन है, उन दोनों को मिलाकर के जो भी फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, जब हम उस कॉस्ट में प्रोडक्ट को बेचेंगे इन द केस ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर हमें अपना मार्जिन थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। अब ये मार्जिन में भी 2 तरीका हो सकता है। देखिए, क्या पहला तो मार्जिन आपको कितना ऊपर पैसा लेना है और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। बहुत लोग को ROI की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी होती है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी उनको चाहिए होता है। पर उन्होंने 10 लाख रुपए ROI किया है, तो वो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में, और ईयर्स के हिसाब से 1 साल में मान लीजिए उनको 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, तो उस हिसाब से पर प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगा देंगे उसका, और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को वापस लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस मेथड दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द कंपनी इन द केस ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या रहेगा, प्राइस प्रोडक्ट का, कॉस्ट प्लस मेथड, जितना बनाने में लगा उससे मार्जिन लेकर के प्रोडक्ट को सेल करेंगे मार्केट में। अच्छा, ग्रोथ वाले स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर हम ना प्राइस यूज करेंगे मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए। हियर लेट मी टेल यू, मार्केट पेनिट्रेशन
पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब हम मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे वी ऑल नो कि स्टार्टिंग में मार्केट कभी भी कोई भी कंपनी कैप्चर एक साथ नहीं कर सकती है पूरा लार्ज मार्केट को, बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ग्रोथ स्टेज में है तो यहाँ पर आपको अपने मार्केट का एरिया बढ़ाना है, आपको कंज्यूमर बेस इंक्रीज करना है। So for that, what you are going to do, you can decrease the price of the product. मार्केट पेनिट्रेशन ये जो है ये हमेशा प्राइस को डिक्रीज करके आप बेहतर कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्ट का कॉस्ट लो होगा आपका कंज्यूमर बेस उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा इंक्रीज होगा आपका कस्टमर बेस, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होगा द कंज्यूमर्स आर द प्राइस सेंसिटिव, कंज्यूमर क्या होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको बेहतर प्रोडक्ट लो कॉस्ट में मिल जाएगा तो दे विल डिलाइटफुल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब जैसे एग्जांपल में तुम लोग देखो, बिग बिलियन डे आता है ना, बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट पे, यस मैम, जो ईयरफोन मार्केट में अभी आपको 1000 रुपीज में मिल रहा होगा, यू विल परचेज इट एट 600, ट्रू? Yes, Yes, ma'am. सही बात है कि नहीं? Yes. अब आपको सेम मॉडल 600 रुपए में मिल रहा है, और मान लीजिए अभी तो खैर बिग बिलियन डे आने में टाइम है, वो तो अक्टूबर के राउंड में आता है, तो जस्ट ऐसे आप सोच के देखिए कि हाँ, अब आप सोचिए कि अगर वो आपने 600 रुपए में खरीदा और वो 1000 रुपए उसकी कीमत थी, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा मैम बहुत अच्छा लगेगा। Why? Because we have such mentality, because we always want to purchase the good product at low cost. हमेशा ये हमारी मेंटालिटी होती है, जितना अच्छा प्रोडक्ट लो और लो कॉस्ट में मिल जाए उतना अच्छा लगता है। जैसे एग्जांपल में जब मैं स्विगी से कई बार कुछ चीज मंगाती हूँ और एकदम से उस पर डिस्काउंट 60% लग जाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ना, बिकॉज वी आर प्राइस सेंसिटिव। So here for the market penetration, what we can do, we can use the low cost strategy. Here we can decline the cost of the product. हम लोग यहाँ प्रोडक्ट का कॉस्ट डिक्लाइन कर देंगे ताकि मार्केट शेयर आपका ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो पाए। क्लियर हो गई बात? तो इन द ग्रोथ स्टेज, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता जा रहा है तो हमारे कस्टमर्स भी ज्यादा बनेंगे, और इसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन बेसिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। So here we are going to use the penetration pricing strategy, ठीक है। इसको भी एक टाइप्स ऑफ प्राइसिंग में आता है, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? This point is clear to all of you. Now the next one is maturity. Maturity में प्राइस क्या रहेगा? तो maturity में क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो है, it may elaborate the another one, ठीक है। तो प्राइसिंग, आपका जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होता है वो क्या होता है? तो देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस सेट कर रखा है। एग्जांपल में अगर मान लीजिए कि एक तो मोनोपोली सिचुएशन है मार्केट में, मोनोपोली यानी एक ही कंपनी जो है वो मार्केट में प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड है और इसी कंपनी का मार्केट में डिमांड है, ठीक है। तो मोनोपोली के सिचुएशन में क्या होता है, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर या कंपनीज होती हैं, दे हैव टू सेट द प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंपटीशन। अगर मान लीजिए कि अगर हम बीकानेर और हल्दीराम को देख लें, बीकानेर दे आर सेलिंग काजू कतली एट 1150 rupees per kg. So now the Haldiram is also going to sell it around 1200. Why? Because of the competitors pricing. Competitive pricing में या तो competitor से price product का low रखेंगे या तो competitor से price product का high रखेंगे. So the price will be according to the competitors present in the market. So that is known as competitive pricing strategy. Because at the maturity stage we are at the peak. हम एकदम peak पर होंगे. तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, वी आर एट द पीक, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर नॉट गोइंग टू यूज कॉस्ट प्लस और द मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, वी आर बेसिकली गोइंग टू यूज द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कि प्राइस जो है वो मैच करे कॉम्पिटिटर से और साथ साथ में कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाए, कॉम्पिटिटर्स के साथ compete कर पाए मार्केट में। So here we are in the maturity stage. The competitive pricing strategy is adopted by the brand or the company. Clear हो गई बात, समझ में आया यहाँ तक? Clear to all of you? Yes, ma'am. Now in the decline stage, what we are going to do here, we are going to cut the price. Here we are not thinking about that what kind of pricing strategy I am going to adopt. The company is not very much concerned toward it, but they are going to cut the price as
मतलब जितना ज्यादा हो सके they will start basically reducing the price of the product and they want to decline, मतलब remove so many the extra activities whatever is going on in the market, like they will start मतलब बोल सकते हैं ना वो अपने कंप्रेस कर देंगे अपने मार्केट को भी, मतलब मार्केट को भी वो कम कर देंगे, मार्केट शेयर जितना बढ़ा हुआ था उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, एडवर्टीजमेंट को कम कर देंगे. So here in the decline stage there is the cut price policy. Here we are going to reduce the price of the all activities. ठीक है, जहां पर भी एक्स्ट्रा लगेगा खर्च होगा, बस काम चलाओ टाइप वाला जितना इसेंशियल एक्टिविटीज है बस उसी में प्राइस लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द अदर एक्टिविटीज. व्हाट विल बी डन इन द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? लेट मी टेल यू, इट इज रिलेटेड विद द प्लेस. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो या 4 पीस का प्लेस हो, इसका दोनों का मतलब सेम है. तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप प्रोडक्ट को बनाते हैं जब हम फैक्ट्री में, तो ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री में ही आकर के कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. करेंगे क्या? नो. करेंगे. अच्छा, सोचो कि सुबह को ब्रेड खरीदना है, वैष्णवी आपको ब्रेड परचेज करना है, so what do you think that you want to go to the factory or you are going to purchase it from the retail outlet? Vaishnavi, I am asking this question from you. What do you think? Yes, ma'am. What do you think, that you are going to purchase it from the retail store or you are going to basically factory to purchase that bread? Ma'am, retail. Retail. Why? Because that is convenience product and we'll purchase it from the nearby the stores which is available in our colony or in locality, right? They are not going to purchase everything from the factory, and just imagine that there is very less factory which is available for all these products. ठीक है, और in a whole city it might be possible that there is a 1 or 2 factory, and just imagine कि अगर फैक्ट्री से ही प्रोडक्ट खरीदना होगा तो कितनी भीड़ लगी होगी फैक्ट्री के बाहर. Just imagine. So distribution is one of the important criteria which the company is using. Now the question is that how they are going to distribute the product, that is totally dependent upon the company. किस तरीके से उनको distribute करना है प्रोडक्ट को, वो कंपनी पे डिपेंड करता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको पतंजलि का एग्जाम्पल लूं या फिर सॉल्ट का एग्जाम्पल लूं, पतंजलि प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लूं, सॉल्ट का एग्जाम्पल लूं, शुगर का एग्जाम्पल लूं, तो ये सारे जो भी प्रोडक्ट हैं दीज आर द कन्वीनियंस प्रोडक्ट, डे टू डे यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं. तो इनका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट ईच एंड एवरी स्मॉल जनरल स्टोर टू बिग रिटेल स्टोर. हर जगह पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे. लेकिन हाँ, छोटे छोटे जो जनरल स्टोर होते हैं वहां पर आपको अल्टरनेटिव का ऑप्शन बहुत ही कम मिलेगा. लेकिन इफ विल टॉक अबाउट द बिग रिटेल स्टोर, वी आर एबल टू गेट सो मेनी अल्टरनेटिव्स. हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे. बिस्किट्स भी देखो तो यू विल गेट वेराइटीज इन द बिग रिटेल स्टोर. बट दीज आर द बेसिक आइटम्स एंड द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप लोग बहुत सारे मीडिएटर को यूज करते हो, बहुत सारे मीडिएटर, जितने ज्यादा हो सके एजेंट मीडिएटर, बिकॉज वी हैव टू सेल दीज प्रोडक्ट टू द रूरल एरियाज, टू द एकदम रिमोट एरिया से लेकर रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरियाज, हर जगह पे आपको इन प्रोडक्ट को सेल करना होता है. ठीक है, दीज आर द कॉमन एंड द बेसिक प्रोडक्ट. तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पर वो पढ़ना है हमें. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में चूंकि हमने प्रोडक्ट को अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन तो कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदेंगे कि नहीं, है ना. अब एकदम से पूरे मार्केट में प्रोडक्ट को पूरा का पूरा स्प्रेड कर दिया और सेल हो ही नहीं रहा है प्रोडक्ट का. तो हम स्टार्टिंग में ना सिलेक्टिव मार्केट में अप्रोच करेंगे, यानी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. कुछ कुछ एरियाज में प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इंटेंसिव नहीं होगा, हर जगह पहुंचाने वाला वो नहीं होगा, सिलेक्टिव होगा. थोड़ा बहुत अपना आसपास सेलेक्ट करके हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे. लेकिन ग्रोथ में चूंकि अब हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ चुका है और बहुत सारी जगह से कंज्यूमर का डिमांड आ रहा है, तो यहाँ पर हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है in the growth stage, and in the introduction stage we will do the selective distribution. Selective का मतलब होता है चुनिंदा जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना, चुनिंदा जगहों पे. ठीक है, और मैं तुम लोग एग्जांपल में बता देती हूँ कि जो बाटा हो गया, डब्ल्यू हो गया, जो भी ये ब्रांड्स है ना, ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तुम लोगों ने देखा है क्या कि लोकल जगह पे ये सब प्रोडक्ट मिलता है? No, ma'am. बाटा के शॉप पे बाटा का जो भी प्रोडक्ट होगा वो अवेलेबल होगा. यस और मैम. उनके Yes, कुछ ma'am. शोरूम्स होते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं. ट्रू है कि नहीं? सही बात है. तो दे Yes, आर ma'am. बेसिकली यूजिंग सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. सी,
ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोग को बस ऐसे ही बता रही हूँ कि सिलेक्टिव, इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इंटेंसिव ज्यादातर कन्वीनियंस प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ में वी विल डू द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम लोग यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा इंटेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके अलावा मैच्योरिटी में हम और भी ज्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इन द ग्रोथ, इन द इंट्रोडक्शन स्टेज सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, in the growth intensive distribution, in the maturity more intensive distribution, and in the decline we are going to move toward the selective distribution। फिर वापस से हम selective distribution की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। अब selective distribution की तरफ मूव इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट अपना क्यों खर्चेंगे, हम लोग थोड़ा selective distribution की तरफ मूव करेंगे। और जो भी अनप्रॉफिटेबल आउटलेट है, यानी जो भी स्टोर है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उन सब आउटलेट को हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। तो here in the distribution what kind of strategy we are going to use, समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay, now we are talking about the advertising. Okay, who is going to tell me what is the meaning of advertising? दो दिन न खवाइए। Yes, ma'am. अब Okay, yes, Arman. Tell me yes, what ma'am. is. Sorry मैम इसके लिए। मैम एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस को अमंग करता है मैम। Okay. Yes. What about Ruchi? Yes. Ma'am, advertising means is the business or act of making something known to the public. Advertising, okay. Okay, ठीक है, good. Advertising, it is a way of communication which is done by the company with the consumers, and it is a one-way communication. It is a, बोल सकते हैं कि impersonal communication. Impersonal communication इसलिए है क्योंकि अगर मैगी का हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछने पे आंसर मिलता है क्या? टीवी से क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे बनेगा? Can we are able to ask the question from the television? No, ma'am. No, because that is a one-way communication. They are basically telling you the facts about the product. Maggie, they are doing the advertising, but we cannot ask the question which we have at that time. We cannot ask, right? So this is advertisement. It is a one-way communication which is done by the company, and it is impersonal because the people are not interacting with the other person. There is no interaction between the people, but yes, we are able to get the knowledge about the product. So in the case of the advertising, what will happen in introduction stage? We are basically going to build the product awareness. What I told you, awareness का मतलब जानकारी, जागरूकता। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये बॉटल मार्केट में लेकर आई हूँ, तो ये बॉटल के बारे में कंपनी को नॉलेज है, कुछ लोगों को नॉलेज है, लेकिन सबको तो नॉलेज एक बार में होगा नहीं। तो इसके लिए मैंने एडवर्टीजमेंट कराना शुरू किया। तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, इसका एग्जिस्टेंस है, ये मेरा in the stage of introduction is like I am going to the company is going to make aware about the product existence to the consumers. कि कंज्यूमर को वो अवेयर करा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो अडॉप्टर्स होंगे, जो इनोवेटर्स होंगे, दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। What will be happen in the growth stage? Here we are basically, यहाँ पर भी हम अवेयरनेस ही बेसिकली हमारा रीजन अवेयरनेस ही होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिटेंशन कर पाए हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उनको नॉलेज रहे, रिटेंशन के लिए उनको याद रहे। तो हियर वी आर बेसिकली गोइंग टू डू द advertisement. But in the maturity, what will be the thing? Here we are going to do advertisement for brand awareness. यानी ब्रांडिंग करना हमारा मैच्योरिटी स्टेज में मेन ऑब्जेक्टिव होगा। प्रोडक्ट को बेसिकली ऑफर, मतलब प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करने का मेन रीजन होगा ब्रांडिंग करना, ताकि लोग जो है वो हमारे ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर पाए। और डिक्लाइन में क्या होगा, यहाँ पर आप अगर एडवर्टीजमेंट करते भी हो तो बस इसलिए करोगे ताकि आपके लॉयल कस्टमर आपके साथ रिटेन कर पाए, यानी रह पाए। सो दिस इज द एडवर्टाइजिंग का ये सारा रीजन है इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी और डिक्लाइन में। लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स प्रमोशन। ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? रेज योर हैंड। सेल्स प्रमोशन क्या है? ओके, लेट मी टेल यू। यस अरमान। सेल्फ प्रमोशन ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को लाने से पहले उसको प्रमोशन कराते हैं मार्केट में मैम।
ओके, ठीक है, गुड। दुर्गेश? मैम सेल्स प्रमोशन इज इंसेंटिव टूल्स जो कि हम कस्टमर को ऑफर करते हैं मार्केट्स में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। Very good. It is an incentive tool. Very perfect word he used. See, sales promotion is a tactics. What is the meaning of tactics? It is a short-term strategy. Short-term strategy यानी कि कुछ समय के लिए जो तरीके को हम यूज करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, फुटफॉल्स को इंक्रीज करने के लिए, स्टोर में ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए, so that is known as sales promotion. ठीक है, so it is a part of the promotion. हम इसको बोलेंगे कि advertising, sales promotion, this is the part of the promotion. और promotion जो होता है, it is a क्या होता है, एक तरीके का communication जो हम करते हैं। तो यहाँ पर sales promotion जो है, जैसे कि हमने कूपन दिया, जैसे कि हमने उस पर डिस्काउंट लगा दिया 20% डिस्काउंट, जैसे हमने 20% एक्स्ट्रा दे दिया। आप लोगों ने देखा होगा बिस्किट के साथ ही हमेशा आता है 20% एक्स्ट्रा। तो दिस इज अ सेल्स प्रमोशन व्हेन वी आर गिविंग फ्री गिफ्ट, लाइक जैसे हॉर्लिक्स के साथ हॉर्लिक्स कप, राइट? इट इज बेसिकली इट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। सो सेल्स प्रमोशन हम कैसा यूज करेंगे? तो देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज में हम सेल्स प्रमोशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी हाल में मैंने लेस का एक पैकेट परचेज किया, तो उस लेस के पैकेट के ऊपर लिखा था 20% एक्स्ट्रा इंट्रोडक्टरी ऑफर। इंट्रोडक्टरी ऑफर का मतलब है कि इसको हमने इंट्रोडक्शन अभी दिया है, इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेकर आए हैं, तो इस पे हम आपको 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं वो, ये आपको प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि भाई जिंदगी भर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं। This is an introductory offer and that is for the temporary basis. Sales promotion is never for the permanent basis, but that is for the temporary basis. Always remember this. So in the case of the introduction, exactly, yes, we are going to do the heavy sales promotion we are going to use. In the second one, that is the growth. In growth, yes, we can do the sales promotion here also because we want to increase the number of consumers. In the maturity, why we are going to give, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब में अलग अलग हो जा रहा है। जैसे इंट्रोडक्शन में तो हम इसलिए देंगे ऑफर क्योंकि लोग हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें, मतलब ट्रायल वाले वजह से वी आर गोइंग टू गिव द सेल्स प्रमोशन ऑफर जो होगा वो हम देंगे। ग्रोथ में हम इसलिए देंगे क्योंकि हमें कंज्यूमर डिमांड जो है वो हमारा बढ़ रहा है, तो लोग जो है हमारे प्रोडक्ट के साथ बने रहे, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सेल्स प्रमोशन करेंगे। इन द केस ऑफ द मैच्योरिटी वाले सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर हम इनकरेज करेंगे कि लोग जो हैं वो ब्रांड स्विचिंग, मतलब इंक्रीज टू इनकरेज द ब्रांड स्विचिंग। यहाँ पर जो लोग दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो स्विच करके हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सेल्स प्रमोशन देंगे। डिक्लाइन में हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे क्योंकि अब डिक्लाइन में आपके बहुत ही कम कंज्यूमर्स बचेंगे, तो जो भी होंगे वो लॉयल होंगे, और लॉयल कंज्यूमर जो होते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द इंसेंटिव ऑफर्स, बट दे आर बेसिकली बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन योर brand. So here we are going to minimize this option, sales promotion. So sales promotion, advertising, distribution, price and product, all these strategies are clear to all of you in the concept of this PLC के concept में ये सारी चीजें clear हो गई सबको? Yes ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes ma'am. Okay. So see you all in the next class. Anyone have any doubt? No ma'am. No, ma'am.